আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো। মা খালারা, ভাই বোনেরা, বুবুরা, দাদা দাদি, মামা মামি, তাহই মাহই, বিহেন বিহেন, আশা করি ভালো আছো। আর তোমরা তাজ্জুব করবে যে আজ কি হালাতে এসছো, কি কি পিনে চলে এসছো। আজ যে তোমরা বাতাবো कि शेरशाहवादी ভাষাতে যতগুলা সামান ইস্তেমাল করছিল আগে বাপ দাদারা দাদিরা বাড়িতে ভুঁয়ে আর কিছু কিছু জায়গাতে, ওগুলোর নাম কি এখন ছেলেপিলাকে পুছ করবে তো কইতে পারবে না, একটাও কইতে পারবে না যে কি কি হয়েছে, এর নাম কি, একে কি কহে, একে কি কহে। তো ওই তার কারণে আমি চাচ্ছি যে যেগুলা সামান আমার বাপ দাদারা ইয়া আজ থেকে 10-20 বছর 25 বছর 50 বছর আগে ইস্তেমাল হচ্ছিল, আর ওই সামান ইস্তেমাল করে আমার মতন লোকগুলাকে বড় করেছে। তো আমার একটা जिम्मेदारी ওই सामान গুলাকে हमारे ছেলে पिले आने वाला नस्ल के बता कि नाम की काम यार কি হচ্ছিল, কিভাবে ওরা এত তকলিফে জিন্দগি চালাচ্ছে, আমাকে বড় করেছে। তার কারণে একটা ভিডিও আমি ছোট্ট করে বানাচ্ছি। আশা করি তোমরা দেখবে আর মজা আসবে এই ভিডিওটাকে, কোনো হালাতে মিস করবে না, স্কিপ করবে না। কিন্তু একটা কথা কইতে চাচ্ছি যে শুধু শেরশাহবাদী কালচারকে আমরা চাচ্ছি যে আমাদের কালচার যে আছে শেরশাহবাদী কালচার নিজের ছেলেপিলেকে তো বাতাবো, তারপরে অন্য জাত যে আছে, অন্য লোক যে আছে ওরাকেও বাতা জরুরি যে আমাদের কালচার কি ছিল, বাপদাদা কি ইস্তেমাল করছিল, এর নাম কি, এর কাম কি। তো অন্য লোককে বাতাবার কারণ যদি বাতাতে হয় দোসরা জনাকে, তো তখন কি করতে হবে, নিজের ভাষা শেরশাহবাদী ভাষা যদি হারা ইস্তেমাল করি সবসময়, তো হতে পারে যে অন্য লোক বুঝতে পারবে না কি কইছে না কইছে, ছেড়ে দিবে, ভিডিওটা দেখবে না। তো ওরাকে বুঝার লাগে, সমঝাবার লাগে ওর ভাষাতে একটা এমন ভাষা যে সবাই মোটামুটি 80% লোক জানে, এই ভাষাটা বুঝতে পারবে, কইতে পারবে। তা ওই ভাষাটা কি হলো আমার এরিয়া দেখি হিন্দি। হিন্দি এমন একটা ভাষা হিন্দুস্তানে 80% লোক বুঝতে পারবে, কইতেও পারবে। তার কারণ আগে নিজের ভাষাটা ছেড়ে তোমরা এটা মনে করিও না যে স্টাইল দেখাইছে চলে গেল মানে হিন্দি কইছে আর কিছু কইছে না। কারণ ওটা লাই, কারণটা হলো কি আমরা নিজের নিজের লোক তো ছেলেপিলাকে কইতে হবে এটার নাম কি জানে না, আমাদের ছেলেপিলে জানে না, এই গিলা সামানের নাম জানে না। এই যে আমি তোমরা দেখতে পেয়েছো মাথাতে, হতে পারে যারকে বয়স মোটামুটি 8 বছর 10 বছর 12 বছর, ওরা কোনো হালাতি কইতে পারবে না এটা কি, এর ইস্তেমাল কি, এর কাম কি। আর যারকে 15 থেকে ওপর বয়স আছে তো বোধহয় কয়ে দিতে পারবে ম্যাক্সিমাম, কিন্তু তারপর 20 বছর ছেলে গেলেও কতগুলা জানে না। তো অন্য লোককে বাতাইতে হবে আর কালচারটা কি ছিল, কি ইস্তেমাল করছিল, কিভাবে কত কত কষ্ট করে জিন্দগিটাকে চালাচ্ছিল। তো হিন্দিতে কইতে হবে, তার কারণে আমি হিন্দিতে যাচ্ছি, তোমরা এসো হিন্দিতে। আর কিন্তু ছাড়িও না, এটা মনে করবে না হিন্দিতে শুরু করে দিয়ে কি দেখবো ছেড়ে দেবো, না, মজা আসবে। খুব সুন্দর কথা। যদি কথাতে কোনো ত্রুটি থাকে, কমই থাকে, তো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, ওই কমেন্টটাকে আমি পুরা করবো ইনশাল্লাহ। আর তারপরে শেরশাহবাদীর এরপরে যে ভিডিওটা হবে শেরশাহবাদীর ইতিহাস কি, আইলো কুন্ডে থেকে আগে কুন্ডে ছিল, কিভাবে আইলো, কি করলে, এখন বর্তমানে হালাত কি, সবটি কথা যদি একটা ভিডিও দিলে আসি তো 2-4 ঘন্টার ভিডিও হয়ে যাবে, অসম্ভব দেখাটা। তার কারণে আমি ওই কথাগুলো ছেড়ে দিচ্ছি এখন, যে আগে ইতিহাসটা কি, শুধু একটাই কথা নিয়ে আসছি কি আমার আগে বাপদাদারা ইস্তেমাল কি করছিল। তো মোটামুটি ও যতগুলা সামান ইস্তেমাল করেছিল তাম সামান যদি এখানে রেখে দেওয়া হয় তো অতি তো 2-3 ঘন্টা লেগে যাবে। তো সম্ভব নয়, কিছু কিছু এমন জিনিস যে বিলুপ্ত হয়ে গেল, এখন পাওয়া যায় না, বড় মুশকিলে। এই যে এই সামানটা দেখছো, তোমরা তো জানো নাম, নাম বলো তো তোমার, এই যে সামানটা
পুরাটা গাঁ ঘোরার পরে এক দুটা পাওয়া গেল, বড় মুশকিলে। তো আব দেখো এত বড় খান্ডা গাঁ, 200-300 ঘরের গাঁ, আর গায়ে একটা মাথল নেই। তার মানে কি হলো, কাম করে না, खेती করে না, সবই করছে। তো জামানা বদলে গেছে, সিস্টেম বদলে গেছে, মানুষ আলাদা আলাদা ইস্তেমাল শুরু করে দিয়েছে। তো ওই নামটা কহাটা প্রয়োজন, জরুরি, লেগে হিন্দিতে কইতে হবে, তা তো তোমরাও বুঝতে পারলিবে। আর তোমরাকে কি বুঝাবো, তোমরা তো সবই বুঝো। অন্য অন্য যারা জায়গা আছে, सुजापुरी হলো কিংবা আর কেউ হলো, ওরাকে বাজাতে হবে, হিন্দিতে বাজাতে হবে। मैं हूं आपका दोस्त उस्मान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय उस्मान। दोस्तों, दुनिया में कितने कितने मजहब के लोग हैं, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, कितने धर्म के लोग इस दुनिया में है, बहुत सारे धर्म के लोग हैं। उसमें से अगर एक धर्म मुस्लिम को ले ले, मुसलमान, इसमें भी कई जातियां हैं, बहुत सारे, 50 से तो नीचे नहीं होगा, ऊपर ही होगा। उसमें से एक जाति है शेरशाहवादी। शेरशाहवादी जो ज्यादातर आपको किशनगंज एरिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया में मिलेगा, बिहार का सुपौल में भी मिलेगा, और बंगाल का उत्तरी दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद तक मिलेगा, अभी असम में मिल जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, बड़े बड़े शहरों में जाके काम करते हुए बस गए हैं, वहां जमीन खरीद लिए हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, वहां भी मिल जाएगा आपको। लेकिन बेसिकली ये उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, ये कुछ 8-10 डिस्ट्रिक्ट है जहां आपको बहुतायत में मिल जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में मिल जाएगा। तकरीबन इसका 2 से 3 करोड़ आबादी अभी यहाँ पर है। तो इतने बड़ी एक जात है, इतने बड़ी एक कौम है ये शेरशाहवादी। आखिर इसके इतिहास में आपको आज नहीं बताऊंगा, कहां से आया, कैसे आया, इसकी जुबान क्या है, ये तमाम चीज मैं बाद में बता दूंगा। आज मैं चाहता हूं कि हमारा कल्चर क्या था, हमारा बाप दादा क्या क्या खेती करने के लिए। और एक चीज मैं बता दूं कि हमारे बाप दादा जैसे इस कौम के जो पहले पूर्वज लोग थे, ज्यादातर खेती करते थे, चाहे वो मजदूर की शक्ल में हो या किसान की शक्ल में हो, जैसी भी हो, खेती से ज्यादा जुड़ा हुआ है, लगा हुआ। आज तो फिर मॉडर्न जमाना आ गया है, और इसमें बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी नौकरी करने लगे हैं, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, बीपीएससी में पास किया, टीचर बन गया। बहुत, हर दुनिया में कोई ऐसी नौकरी नहीं है जहां शेरशाहवादी नहीं है। तो आज मॉडर्नाइजेशन आ गया है, मॉडर्न हो गया है। लेकिन पहले खेती किया करता था, और खेती में क्या क्या सामान इस्तेमाल होता था, आज मैं दिखाऊंगा शेरशाहवादी कल्चर। शेरशाहवादी की जो जुबान है वो बंगला से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ जो बिहार में, बंगाल में तो बंगला, प्योर बंगला बोलते हैं, लेकिन बिहार में एक मादरी जुबान है, बंगला का ही एक रूप है, थोड़ा सा बंगला से हटके है, शायद आप जानते हैं। और ज्यादातर हमारी मादरी जुबान बिहार में शेरशाहवादियों की वो उर्दू है, और हम लोग हिंदी अच्छी तरह से बोल भी लेते हैं, और लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, आसान, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहारी हिंदी बोलते हैं ज्यादातर, और बंगाल के लोग बंगला बोलते हैं। ये शेरशाहवादी के थोड़ा सा इतिहास है। अब कल्चर, आप जो मेरे सर पे देख रहे हैं, ये क्या है, इसका नाम हम शेरशाहवादी में क्या कहते हैं, इसको माथोल कहते हैं। माथोल कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बांस का बना हुआ था, शुद्ध बांस का, इधर भी बांस का छील के रखा है, इधर भी बांस, और बीच में, आज तो प्लास्टिक आ गया, एक जमाना था जब प्लास्टिक नहीं था, इसका इस्तेमाल नहीं होता था, तो यहाँ पर बीच में बांस का ही एक ठोंगा होता था, वो बीच में देके दोनों तरफ से दबा के यहाँ पर बांध दिया जाता था। और ये जब बारिश का मौसम हो और बड़ी तेज धूप हो और खेत में काम करना है, तो उस हालत में छतरी लेके हम काम नहीं कर सकते हैं। एक हाथ में छतरी पकड़ेंगे, एक हाथ में काम करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए एक देसी जुगाड़ हमारे बाप दादा निकाले हैं, और ये बस इसको बना दिए, और सस्ता, चीप एंड बेस्ट, चीप एकदम सस्ते में। इसको उस जमाने में 1 रुपये 2 रुपये में मिल जाया करता था। अब इसकी कीमत जो है अभी भी आपको 100 रुपये में आराम से मिल जाएगा, ले लीजिए, और इसको आराम से यहाँ पर सर पे दे दीजिए। उसके बाद जो काम करना है कीजिए, कभी ये गिरेगा ही नहीं। और बारिश के मौसम में देखिए, यहाँ पर पानी चारों तरफ, इधर से भी गिरेगा, इधर से भी, आपका यहाँ से यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रह जाएगा। और जब यहाँ से ऊपर सुरक्षित हो गया, इसका मतलब आपको कभी ठंडा नहीं लगेगा, दिन भर आप बारिश के मौसम में भी खेत में काम कर सकते हैं। ये देसी जुगाड़ हमारे शेरशाहवादी का कल्चर है, और इसका नाम है माथोल। কি ভাইরা, ভালো না কথাটা, ভালো বলছি না, যদি একটু उल्टा पुल्टा হয় तो फिर कमेंट करवे। तो ये कल्चर शेरशाहवादी का है, माथोल इसको कहते हैं। और ये तेज धूप अगर लग जाए, आप धूप में काम कर रहे हैं ऐसे खाली सर पे, तो ये आपको
बुखार आ सकता है, बहुत सारे बीमारी आपको पकड़ सकता है, तबियत खराब हो जाएगी। और अगर सर बचा लिए तो आराम से आप दिन भर काम कर सकते हैं धूप में भी। तो ये मल्टीपर्पज है, मल्टीपर्पज। बारिश में भी काम कर सकते हैं, धूप में भी काम कर सकते हैं, और ये गिरने वाली चीज है नहीं। दे दीजिए आराम से किसी भी सूरत में, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, जैसे करना है कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहली चीज हो गई जो हम सर पे दे के आए हैं, इसलिए आपको नहीं। उसके बाद मैं बहुत सारे कल्चर में बता देता हूँ। शेर, आप इसको देख रहे हैं, देखिए इसको गौर से। ये चिराग आप तो जानते ही हैं, शायद चिराग जानते ही हैं, ये चिराग है और ये चिराग स्टैंड है। चिराग रखने वाले सामान, ये लकड़ी का है, ये भी लकड़ी का है, ये भी लकड़ी का है। अब ये चिराग यहां पर रख दिए, नीचे रखेंगे तो रोशनी कम होगी, और इसलिए देसी जुगाड़ हमारे बाप दादा निकाले चिराग स्टैंड है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में गच्छा कहते हैं। हमारे अपने भाषा में इसको गच्छा कहते हैं। अब इसको जलाइए, देखिए यहाँ पर आराम से जल गया। अब आराम से इसको रख दीजिए, ये तेल डाला जाता है, लेकिन फिलहाल ये इसका चिराग रखने के लिए। देखिए साइड में इसको माचिस रख दीजिए, आराम से ये रह गया होगा। यही वो लालटेन था एक जमाने में, हम लोग इसी को जला के अपनी पढ़ाई किए हैं, शायद आप भी पूरी किए हैं। तो अब ये विलुप्त होता जा रहा है। मेरा मकसद है हम अपने बच्चों को बताएं कि हम बचपन में क्या किए हैं, हमारे दादा बाप क्या किए हैं, उनको बताना जरूरी है। नहीं तो अगर हम नहीं बताएंगे तो हमारे बच्चे नहीं जानेंगे, और नहीं जानने का मतलब हम अपने कल्चर बच्चों को नहीं देंगे तो हमारे जो दायरा है वहां से बाहर हो जाएगा। मॉडर्न बनना है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन अपने कल्चर से बिल्कुल रूबरू कराते चलिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यह है कि हम अपने कल्चर को कभी नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक, चाहे हम कितनों भी विकसित हो जाए, कितनों भी बड़े अफसर बन जाए। ये तो जानते हैं कूला, जिसको हम लोग कूला कहते हैं, इसमें चावल वावल झाड़ने के लिए ऐसे झाड़ा जाता है। ये शुद्ध बांस का ही बना हुआ रहता है, इसको हम लोग चिंगारी कहते हैं। देखिए ये सब्जी भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें। ये बड़ी बड़ी, इसकी शक्ल बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ये डाली, ये इसका भी शक्ल बड़ी है। देखिए बांस का तमाम नो कॉस्ट एंड लो कॉस्ट, हमारे दादा का या फिर हमारे पहले के लोग जो थे वो दो ही सिद्धांत अपनाते थे। पहले नो कॉस्ट, बिना पैसे का इस्तेमाल करना है, अगर नहीं चले, बिना पैसा का नहीं मिले तो थोड़ा सा पैसा खर्च करना है। फजूल खर्ची नहीं थी उस समय, इसलिए लोग शांति से जिया करते थे। आज हमारे फजूल खर्ची आ गई है, इतनी फजूल खर्ची कि हम जितने भी आमदनी करते हैं, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये दिन, फिर भी हम तरक्की नहीं कर पाते हैं, परेशान रहते हैं। उस समय 5 रुपये दिन कमा के भी आराम से शांति से रहते थे हमारे दादा लोग या फिर बुजुर्ग लोग। कारण एक ही है कि उनके पास फजूल खर्ची नहीं था, जो जरूरत का सामान था उसी का इस्तेमाल करता था, और जो जरूरत से बाहर वो बिल्कुल नहीं किया करते थे, जो हम आज करते हैं। यही हमारी हालत खराब होने की वजह है। ये लकड़ी की दो चीज आप देख रहे हैं, इसको हम लोग लकड़ी कहते हैं। ये तवे में कोई चीज दिए हैं तो ऐसे, और इसमें अगर इससे इस्तेमाल हमेशा करते रहेंगे तो गैस नहीं होगा। कोई सामान अगर भुजिया उजिया खाते हैं, आलू का, कुछ किसी चीज का, तो वो आज हम देखते हैं ना कि इतना हम सावधानी होकर चलते हैं फिर भी गैस हो जाता है। तो वो क्या है कि प्लास्टिक का सामान इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं और स्टील का ज्यादा, इसीलिए। और ये डोई, दाल उल घुटने के लिए, सब करने के लिए, अब देखिए हालत इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अभी हमारे घर में औरतें भी इस्तेमाल नहीं करती है, अब तो स्टील का विभिन्न तरीके से तरह से आ गया है, इसलिए वो मॉडर्नाइजेशन में वो भी आ गए, हमारे घर की औरतें भी आ गई है। इसलिए ये पड़ी हुई चीज थी जो लाके मैं दिखाना चाहता हूँ, हमारे बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग इसको डोई कहते हैं। ये आप जान लीजिए अच्छी तरह। ये तो घड़ा है, कोलसी जिसको हम लोग कहते हैं, सिरसावादी भाषा में इसको कोलसी कहते हैं, और ये चालून कहते हैं। ये देखिए एक चीज और देखिए, ये खोला है जो मिट्टी का है, और इसमें जो रोटी बनेगी, इसमें जो और कुछ बनेगा, वो इतना लजीज होता है, इतना बेहतरीन होता है, दूसरी चीज में होगा ही नहीं। और ये बुसना कहते हैं इसमें हांडी उंडी रखने के लिए। एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये देखिए, ये देख रहे हैं सिक्का। सिक्का का मतलब ये होता है कि ये जूट का बना हुआ रहता है, और यहाँ एक बांस घर में लगा दिया जाता है ऐसे लंबा करके, और उसको इसमें बांध दिया जाता है बांस में, और इसमें हांडी, जग, मग कुछ भी रख दिया जाता है। जब हम बचपन में अपनी माँ से पैसा मांगते थे तो वो यही स्टॉक
यही इसी बैंक से निकाल के दे देते थे, यहीं पर रखा करते थे। 10-20 4-5-6 हांडियां लगी रहती थी और उसी में कहीं किसी पर चीनी, किसी पर नमक, किसी पर कुछ, किसी पर कुछ, किसी पे पैसा, किसी पे और कुछ सामान रहता था। बिल्कुल देसी जुगाड़ है। ये तो झाड़ू है जिसको हम लोग सहार कहते हैं, बांस का। यह हांडी है। और ये जो हांडी पकड़ने वाले सामान है, मैं बता दूं आपको, हांडी पकड़ने वाले सामान ऐसे जो पकड़ा जाता है, जो ये कपड़ा को हम लोग लूता कहते हैं, लूता। इसको आप देख रहे हैं, देखिए ये ओरिजिनल शक्ल में नहीं है, ओरिजिनल शक्ल में नहीं, इसको मैं बनाया, मैं खोजा, बहुत ज्यादा खोजा इसको कि भाई देखते देखते তোমরা কবে যে কোনটা দেখে লিয়েছিলে সে উঠিয়ে सही माने उठिए लीजिए सी उठिए लिया नहीं, बल्कि माने এখন বানাইনো একে, इसको हम लोग कहते हैं ढेरा, ढेरा। और इससे काम क्या होता है कि मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले रस्सी, रस्सी ऐसे प्लास्टिक का जो रस्सी आपको बंडल मिल जाता है, पहले नहीं मिला करता था, बनाना पड़ता था। अब जैसे जूट, जो देसी जूट है, आप देख रहे हैं ये देसी जूट है, और उसी को ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया। अब ये ऐसे घुमाता था, ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया। ठीक है, हम खूब देखे हैं बचपन में इसको और खुद इस्तेमाल भी किए हैं। ऐसे घुमा दिया, अब इतना आ गया, अब उसको इसको नीचे लेके आ गया, इसको नीचे लेके आ गया, और ऐसे 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 ये फिर इतना कर दिया। अब फिर इसमें ऐसे करने के बाद फिर इसमें ज्वाइंट दे दिया, उसके बाद फिर घुमा रहा है, फिर घुमा रहा आराम से, देख रहे हैं। आराम से इसको घुमा दिए, फिर इतना बनकर तैयार हो गया। अब फिर इसको ऐसे ऐसे करते चले। हम अपने दादा को बहुत अच्छी तरह से देखें ये करते हुए, ऐसे चल रहा है। जब ये खत्म हो जाएगा फिर दोबारा दे दिया जाएगा। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के लिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की रस्सी बनती है। आपको यकीन हो जाएगा। ढेरा कहते हैं इसको, ढेरा। ये बनके तैयार हो गया। अब देखिए, अगर आपको यकीन नहीं होगा, बेहतरीन तरीके से रस्सी बनकर तैयार हो गया। फिर इसको हम लोग खोल देते हैं। दोस्तों, आज मैं एकदम किसान बन के आया हूं, बिल्कुल किसान, जो एक ओरिजिनल किसान होता है इसी शक्ल में रहता है। हमेशा ये ले लिया, मान लो बरसात का मौसम है, धूप का मौसम है, अब ये ले लिया। उसके बाद ये कोदोल, कोदाली जिसको बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, इसको कोदोल कहते हैं। अब ये ले लिया, उसके बाद ऐसी लुंगी को बिल्कुल ऐसे उठा दिया, क्योंकि कीचड़ नहीं होगा। और एक और तरीका है, ऐसे खींचता है तो वो थोड़ा सा अनडिसिप्लिन सा लगता है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। और एक चीज, ये जो गंजी होता है ना, बाहों वाला, इसका 4 फायदा मैं बताता हूँ आपको। वो हमेशा किसान का देखिएगा ना, ये इसी तरह रहता है। 4 फायदा क्या है? पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल हिफाजत से यहां तक रहता है, ये हमारे पर्दा का काम करता है, यहां तक रहेगा, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, क्या ये जब हम खेत में काम करते हैं, चाहे धूप हो बरसात हो, धूप में अगर ये पर्सन जो हमारा है वो धूप लगा रहेगा, बिल्कुल खुला हुआ है, अगर ये वाला सेंडो वाला गंजी पहनेंगे तो ये खुला हुआ रहता है, ये खुला हुआ तो ये जल जाएगा, इसका डिस्कलर हो जाएगा, तो इसलिए ये जलने से भी बचा लेता है। 2 हो गया। तीसरा फायदा क्या है, अगर हम खेत में काम कर रहे हैं और नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो आप आराम से इसको उतार दीजिए। गमछा साथ में हमेशा रहता है, ऐसे यूं दिए, सर पे दे दिए, ऐसे दे दिए, नमाज पढ़ना शुरू कर दिए। तो ये फायदा ये हो गया, गंजी तो फुल है, नमाज पढ़ते वक्त भी कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, नमाज भी आराम से पढ़ ली हम। उसके बाद एक और फायदा क्या है, तो बहुतों का देखिए कि यहाँ पसीना, ये दोनों साइड में जो है वो पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो जिससे हमारा अगर सैंडो वाला रहेगा तो शर्ट जो पहनते हैं तो वो डिस्कलर हो जाएगा, डिस्कलर हो जाएगा। तो अब ये गंजी डिस्कलर होगा लेकिन शर्ट को बचा लेगा। और एक फायदा क्या है कि ये जो पर्सन है पसीना से अक्सर भीग जाता है, और जब हम शर्ट पहनते हैं तो उस शर्ट में जो है वो पसीना लग जाता है और वो जल्दी फट जाता है और बदबू होने लगता है। इस तरह ये अपने आप को बचा लेता है, इसलिए हमेशा इसका इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा होता है। पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। अब खेत में काम कर रहे हैं, खेत में काम करते करते नाश्ता आ जाता है, नाश्ता आता है जिसको हम लोग लाहरी कहते हैं। लाहरी लेके आ गया कोई बच्चा आ जाएगा, तो कैसे आता है, मेरा भी लाहरी आ चुका है, लाहरी आ चुका है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पॉलिथीन कैरी बैग में नहीं होता। हमारे दादा जो है, हमारे बाप दादा जो है कैरी बैग का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो होता भी नहीं था उस समय। उस समय क्या था कि ये लुंगी या गमछा का कपड़ा भी होता था। अब इसको देखिए खोलते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से इसको बांधा जाता है। और देखिए क्या बात है, ये सबसे अच्छी चीज है, हाथ पका रोटी कि देखते हुए जो ना हाथ पका रोटी कत भालो, इसको आराम से नमक के साथ हाथ से पकाया जाता है। और ये इसी चीज में देख रहे हैं, इसी चीज में पकाया जाता है बिल्कुल। और इसको आराम से नमक के साथ ऐसे ऐसे से आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई गैस नहीं, कोई डायबिटीज नहीं, कोई हाई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। एक खाइएगा पेट भर जाएगा। और ताकतवर है तो दो खाइए। और चूंकि हमको दिखाना है आपको सबसे मजेदार चीज आपको दिखाना है, ये देखिए, ये जो है चिटाई जिसको कहते हैं, छिद्र देख रहे हैं आप, छिद्र देख रहे हैं, यह अलग से नहीं किया गया है। आप सोचेंगे कि ये किया जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता है। ये इसी तावे में, खोला में चिटाई कहते हैं और बेहतरीन है। दूध से खाइए, इससे अच्छी चीज है ही नहीं। शेरशावती कल्चर में सबसे बेहतरीन चीज है, इसको खा के देखिए एक बार। तो ये आप देख लिए चिटाई। कहीं अगर आप शेरशावती नहीं है और शेरशावती के घर में मेहमानी करने गए हैं तो उसको बोलिएगा भैया हमको काजू नहीं चाहिए, किशमिश नहीं चाहिए, दो चीज खाने। तो फिर आप खा के एक बार देखिए। एक तो चिटाई दूध से इसको खाइए, एकदम आपको इतना अच्छा लगेगा, जिंदगी भर आप खाना चाहेंगे, तो शेरशावती से दोस्ती करने लगेंगे। और हो सकता है कि आप समधी बना लें या फिर और कुछ जो भी हो। तो ये चिटाई है, या हाथ पका रोटी चिटाई। তারপরে এই দেখো একটা शेरशावादी, अगर তোমার যদি शेरशावादी থাকো তো দেখতে পাচ্ছ बेहतरीन सामान, থেকে ভালো জিনিস আর কিছু नहीं। मतलब दोस्तों दो चीज में बताया कि दो चीज खाइए, एक तो चिटाई हो गया, दूसरा ये अनासा, एकदम आटा का ही बनाना था। इसमें पहले गुड़ से बनता था, अब गुड़ जो है नहीं मिलता है, या फिर वो जमाना नया आ गया है तो थोड़ा अब चीनी से ये व्हाइट हो गया, व्हाइट ये हो गया। और इतना बेहतरीन है, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप मीट खाते हैं, जो भी मीट खाएं, मीट खाते हैं तो मीट से खाइए, एकदम आपको मजा आ जाएगा। ये खास करके हम लोग के घर में, हमारे शेरशावती घर में अगर नया दूल्हा आ जाए, नई शादी हुई है, दूल्हा आ रहा है, तो ये कंपलसरी है। या समधी को हम लोग बिहाई कहते हैं, बहन कहते हैं समधिन को, या फिर कोई नए रिश्तेदार आ जाए तो उसको ये कंपलसरी है। ये नहीं देने से फिर आपकी बदनामी हो जाएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी। तो ये देते हैं, तो ये बेहतरीन चीज है। देखिए इसको अगर हम तोड़े तो एकदम देखिए अंदर बिल्कुल रूई के मानिंद है, खाएंगे ना हम। मैं तो इसका एकदम बिल्कुल मैं कायल हूं इसका। ये रह गया, इससे बेहतर कोई चीज है नहीं। मीट मछली तमाम चीज में छोड़ दूं इससे। तो अगर अगली बार आप शेरशावती के घर में जाते हैं मेहमानी, तो मतलब नजर लगाया ना, गैलो दिया ना, है हाथी काम लग से, तो बोलो, तो आप शेरशावती घर में जाते हैं तो इसको खाइए और बार बार खाने का मन करेगा। शुद्ध देसी है, कोई इसमें मिलावट नहीं, कोई मिक्सचर नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई डायबिटीज नहीं,
कोई हाई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल खाइए, सेहतमंद रहिए। ये शेरशाहबादी की सबसे बड़ी पहचान है, समझ गए? तो अगली बार जब भी शेरशाहबादी के घर में जाएंगे, अनाज साफ सिताई जरूर खाएंगे। ये अब तब आपको पता चलेगा। तो ये हमारा कल्चर है, कल्चर है, ये आज भी चलता है, आज भी चलता है, ये विलुप्त होने वाली चीज नहीं है। अलबत्ता वो जो हाथ पका वाला रोटी है, हाथ पकी वाली रोटी है, वो रोटी अब कम हो गई है, खेत में अब कम जाता है। अब नाश्ता तो थोड़ा बिल्कुल लाइट नाश्ता हो गया, लोग अब मॉडर्नाइजेशन में आ गया है, चाय ज्यादा होने लगी है, और विभिन्न तरह का दुकान में लोग पूरी खा लेते हैं, वो तेल के छकी हुई पूरी, पेट खराब हो जाता है। वो किस तरह रहता है कढ़ाई उसका देखेंगे तो आप ना, दुकान, मैं तो कहता हूं दुकान में जो पूरी है ना, बिल्कुल खाया मत कीजिए, बिल्कुल खाए, ये सबसे बीमारी का जड़ है। इसलिए आप देसी खाइए, शुद्ध रहिए। एक चीज मैं बता दूं, अगर आप खेत में ये काम करना ना, तो जिम जाने की जरूरत नहीं है। जो जिम जाते हैं ना, जो उनका ये होता है ना, फॉल्स होता है, ये जो होता है, ये होता है जो फॉल्स होता है, इसमें कोई ताकत नहीं। और ये चलाने वाले का जो होता है ना, प्योरिटी, प्योर एंड श्योर। तो अगर आपको डायबिटीज, आप चाहते हैं कि डायबिटीज ना हो, चाहते हैं प्रेशर ना हो, चाहते हैं बदन भारी ना हो, हल्का रहे, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। को जो क्या कि आलो कथा कुछ ना बुझते पारছো तो की छूट लो। आटा की चक्की, जिसको हम लोग शेरशाहबादी की भाषा में इसको जाता कहते हैं, और इसमें चावल अभी डाला गया है चिटाई और अनासा बनाने के लिए। इससे आटा निकलेगा, उसके बाद चिटाई बनेगा और फिर अनासा बनेगा। इसलिए आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से ये अभी कुछ देर पहले इसमें चावल डाला। अब देखिए ये साइड से देखिए आटा धीरे धीरे निकलता हुआ शुद्ध देसी आटा। इस आटे को खा के आप देखिए, कभी बीमार आप नहीं पड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि चाहे जितनी भी दूध दुनिया में आ जाए, माँ की दूध की जैसे कोई ताकत नहीं है। वही चाहे दुनिया में जितनी भी आटा आप खरीद ले, जहाँ से भी आप खरीद सकते खरीद लीजिए, लेकिन इस आटे में जो ताकत है, इसमें जो ऑरिजिनलिटी है, इसमें जो प्योरिटी है, वो कभी आपको नहीं मिल सकता। शुद्ध देसी प्योर एंड श्योर आटा, देसी मानव चलित चक्की से, जिसको हम लोग जाता कहते हैं, जाता, शेरशाहबादी भाषा में इसको जाता कहते हैं। देख सकते हैं ये देसी राइस मिल है चावल निकालने का, जिसको हम लोग शेरशाहबादी भाषा में ढेकी कहते हैं। अभी कुछ देर पहले इसमें धान दिया गया है, और दो महिला उधर उसको दबा रहा है इस ढेकी को, और एक महिला यहाँ बैठ के धान को हिला रही है। और हिलाने में इतना तकनीक की जरूरत है, थोड़ा सा बैलेंस अगर गड़बड़ा जाए तो हाथ कट जाए, इसी को ढेकी कहते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है चावल निकालने में। और उसके बाद ये जो महिलाएं हैं, ये हमेशा सेहतमंद रहती है। पुराने जमाने के हमारे जो महिलाएं थी इसी पे काम करती थी, और इसीलिए वो हमेशा सेहतमंद रहती थी, मरते दम तक उसकी सेहत खराब नहीं होता था। देखिए अब ये इस ढेकी से अभी जो पहले धान दिया गया था, अब चावल निकल के बिल्कुल तैयार। अब इस चावल का इसको झाड़ के अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए आप ये शेरशाहबादी द्वारा सब्जी की खेती, बैगन की खेत है, और इसको आप देख सकते हैं। और उसी के बगल में बिल्कुल आधुनिक खेती, जिसको हम कह सकते हैं, ये चाय पत्ती लगी हुई है, और जो दूर नजर आ रहा है वो धान की खेती है, और फिर एक टावर भी नजर आ रहा है। कितना सुंदर नजारा है ये, देख सकते हैं। दोस्तों आइए एक गांव का नजारा दिखाते हैं कि शेरशाहबादी का घर जो है गांव कैसा होता है। ये देखिए ये गांव से निकलने वाली ये सड़क है, जो सीमेंटन ढलाई से है। अब इसके बाद जो नजर आ रहा है ये घर है अब्दुल रशीद, ग्राम धूमनगर, पंचायत कुट्टी, प्रखंड कोचाधाम, जिला किशनगंज, ये घर है। और देखिए इस तरफ ये मस्जिद नजर आ रही है। अब ये गोली, जिसको हम लोग गोली कहते हैं शेरशाहबादी भाषा में, अनाज यहीं पर निकाला जाता है, उसके बाद अपना घर लेके जाया जाता है। अब गोली से जो हम घुसते हैं आंगन की तरफ, इसको डेढ़ी कहते हैं, शेरशाहबादी भाषा में इसको डेढ़ी कहते हैं। तो इसी डेढ़ी से हम लोग अंदर घुसेंगे। ये दोनों तरफ टीना लगा हुआ है। 2017 के बाढ़ में ये मिट्टी का बना हुआ था, ये गिर गया था, इसलिए इसको टीना दे दिया गया है। अब इस डेढ़ी से हम लोग बिल्कुल आंगन आ गए हैं, जिसको शेरशाहबादी भाषा में हम लोग कह सकते हैं उसको
एगिना कहते हैं शेरशाहवादी भाषा में। और ये आंगन है, चारों तरफ से घर है और बीच में खाली जगह पर है। अब जो नजर आ रहा है आपको ये फूस वाली मकान जो है, ये किचन रूम है, जिसको शेरशाहवादी भाषा में हैसल घर कहते हैं। ये किचन रूम है जिसमें खाना बनाया जाता है। अब चलिए हम किचन रूम के अंदर घुसते हैं, है ना। इसको हैसल घर कहते हैं, याद रखिए इसको, शेरशाहवादी भाषा में हैसल घर। अब किचन रूम के अंदर हम बिल्कुल आ गए हैं और अंदर का नजारा देखिए, कितना खूबसूरत सा नजारा आप देख सकते हैं। अभी आपको चूल्हा दिखाएंगे, चूल्हा देखिए। अब इसमें भी थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आ गया है कि ये अब पहले ये मिट्टी का होता था, अब ये सीमेंटेड चूल्हा है। देखिए उसके बगल में लकड़ी रखी हुई है, इसी लकड़ी से जो है आग जलाया जाता है और खाना बनाया जाता है। ये लकड़ी भी किसका है? मकई का। इसमें भी कोई खर्च नहीं है, सिर्फ नो कॉस्ट लो कॉस्ट के थ्योरी में चलता है। अब ये जो बर्तन रखने वाले जो सामान है, ये भी मिट्टी की बनी हुई है, देखिए इसमें भी कोई खर्च नहीं है। अब जो ये जो सब्जी रखने वाले सामान, ये भी मिट्टी की बनी हुई है, इसमें भी कोई खर्च नहीं। फजूल खर्ची शेरशाहवादी के घर में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। धीरे धीरे इसमें भी मॉडर्नाइजेशन आ गया, मॉडर्न आधुनिकता आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत पीछे। और ये शुद्ध है। अब देखिए ये आंगन दिखाई पड़ रहा है, एगिना जिसको बोलते हैं। बच्चे खटिया पर, खटला जिसको हम लोग शेरशाहवादी में खटला के ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं। अब ये जो नजारा है, क्या खूबसूरत सा नजारा नजर आ रहा है। देखिए पीछे नारियल, गोली में एक नारियल का पेड़ है, वो दिखाई पड़ रहा है। लग रहा है कि ये अंग्रेज के जमाना का टीना है और लगभग 30 साल पुराना भी है भी। बहुत ही खूबसूरत सा नजारा। आप इसको थोड़ा सा मुआयना कीजिए, कितना खूबसूरत नजारा, बिल्कुल आसमान की तरफ। अभी आंगन से हम चलते हैं आपको कंटा की तरफ, वही वाला कंटा जो घटना कहाँ हुआ था, कंटा में हुआ था, तो वही कंटा है। अब देखिए ये भी यहाँ पे एक चूल्हा है धान बॉईल करने का, उसका भापा पड़ा, जिसको हम लोग शेरशाहवादी में धाना उसका भापा करा। अब देखिए कंटा में एक ट्यूबवेल मिलेगा जहाँ पर नहाने का, हमने तो पानी का काम यहीं से होता है। इसमें भी देखिए मॉडर्न आ गया, ये मोटर लग गया है, पहले मोटर नहीं हुआ करता था, लेकिन ये 2-4-5 साल से हर घर में आपको मोटर नजर आएगा। अब यहाँ से देखिए एक नजारा और है, एक खूबसूरत सा आपको देखिए बाथरूम नजर आ रहा है। ये पहले कुछ आज से 10 साल पहले ये कच्ची हुआ करता था, लेकिन अब पक्की हो गया है। यानी शेरशाहवादी घर में भी अब आधुनिकता बिल्कुल आपको नजर आ जाएगी। अब इसके बगल में सटा हुआ है एक लकड़ी का घर, जिसमें लकड़ी रहता है और यही लकड़ी से खाना बनाया जाता है। यहाँ से निकाल के महिलाएं लेके जाती है, वहाँ खाना बनाती है। अब हम लोग कंटा से फिर आंगन की तरफ आ रहे हैं। वो जो जाल नजर आता है, इसको बिछा के अनाज धूप में दिया जाता है, उसको सुखाया जाता है, फिर अपने कोठी में रख दिया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग डेढ़ी से गोली की तरफ जा रहे हैं और वो मेरी माँ नजर आ रही है, वो धान छाड़ रही है बैठ के। और देखिए गोली कितना खूबसूरत नजर। और सामने जो आप घर देखिए, वो घर, ये सामने वाला जो घर है लाल गेट वाला, वो मेरा घर है। और देखिए गोली का कितना खूबसूरत नजारा है। तो दोस्तों वीडियो आपने देखा, कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब से मेरे हौसला अफजाई होगा और इस तरह हम नए नए तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे और आपको आनंद आता रहेगा। तो माखालारा भाई बंधुरा, তোমরা কেমন দেখলে ভিডিওটাকে? কি লাগছে তোমাকে? কি এভাবে ভিডিও বানা প্রয়োজন, জরুরি না? ভিডিও বানালে চলবে না, জামানা এত খারাপ। আমাকে এখন একটা লাস্টে আমি একটা মেসেজ দিতে চাচ্ছি যে নিজের ছেলেপিলে যতগুলো আছে একটু মোবাইল থেকে দূর করো, মোবাইল টিকটক থেকে দূর করো। পরেশান হয়ে যাচ্ছে বাড়িতে, আমি নিজেও পরেশান হয়ে আছি, তোমরাও পরেশান হয়ে যাবে যখন বাড়ি পৌঁছলে মোবাইল নিলে চার্জ খতম, ইয়ে খতম, ও খতম, পরেশান হয়ে যাচ্ছি। একটু দূর করো আর কালচারের দিকে নিয়ে এসো, কালচারের দিকে নিয়ে এসো, খুব জরুরি। বিনা কালচারে নিজের পরিচয়, নিজের স্ট্যান্ডার্ড, নিজের ই খতম হয়ে যাবে। আর একদিন এমন সময় আসবে যে কাউকে কেউ চিনবে না। আর একটা কথা, दादा का नाम क्या है बच्चों से पूछा जाए तो वो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। हमको लगता है कि 99% नहीं बोल पाएगा। दादा का नाम बोलने में तो नानी याद आ जाती है, हालत खराब हो जाता है लोगों का। तो दादा नाम ही याद बड़ी मुश्किल है। और पूछा जाए कि ऐश्वर्या राय कौन है, वैसी फौरन बोल देगा ये फला, ये अमिताभ की बहू है, अभिषेक की बीवी है, फला है, फला है, फला है, इस तरह डिटेल्स बोल देगा। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपके बच्चों से, हमारे बच्चों से, तमाम लोगों से, अगर ऐश्वर्या राय नहीं होती तो क्या हमारी पैदाइश होती कि नहीं होती?
आपकी पैदाइश होती कि नहीं होती? होती ना। वो नहीं भी होती तो हमारी पैदाइश हो जाती। अगर हमारा दादा नहीं होता या दादा का दादा नहीं होता तो हमारी पैदाइश होती? नहीं होती। आपकी भी पैदाइश, आपके दादा का दादा नहीं होता तो आपकी भी पैदाइश नहीं होती। हमारी पैदाइश में, आपकी पैदाइश में ईश्वर की कोई भूमिका है? हेमा मालिनी की कोई भूमिका है? और दादा का दादा जो है हमारी पैदाइश में पूरी भूमिका है। तो जिसने हमें पैदा किया, पूरी भूमिका निभाया, उसको हम भूल बैठे, उसका नाम भूल बैठे, उसके वजूद को भूल बैठे, उसके अस्तित्व को भूल बैठे, उसको याद नहीं है, उसके बारे में नहीं जानते हैं। और जिसके, मेरी पैदाइश में जिसकी कोई भूमिका नहीं है, जर्रा बराबर नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, और उसके पूरे बैकग्राउंड मुझे याद है, तो ये अफसोस की बात है कि नहीं? ये बैकग्राउंड उसके याद रखना बुरी बात नहीं। बुरी बात यह है कि हम अपने नस्लों को भूल गए, पूर्वजों को भूल गए हैं, बुजुर्गों को भूल गए हैं। वो क्या करते थे, किस तरह जिंदगी गुजारा करते थे। आज हम जाते हैं ना, इतनी फैसिलिटीज हो गया है, ये वो ये तमाम चीज। उस वक्त फैसिलिटी नहीं हुआ करता था। जिंदगी कितने मुश्किल से गुजारा होगा, जरा याद कीजिए। इसलिए अपने कल्चर को बचाइए।